Hello dear students, very good evening to all and happy new year to all. Let's discuss about the topic that is how to crack FCAT examination. आप सभी को पता है आपका एग्जाम FCAT बहुत नजदीक है, तो आज हम वह स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे इजीली FCAT एग्जाम्स को कैसे रिटन क्रैक किया जा सकता है. आई एम चंद्रवीर एंड फैकल्टी एट शौर्य भारत GK and General Science. So let's see what are those important pointers which are helpful to assist you in your FCAT examination. General knowledge, that part, जो part मैं आपको यहां बता रहा हूं वह है GK and that is general awareness. साइंस और GK जो है दोनों के क्वेश्चन मिक्स आते हैं और कभी ये क्वेश्चन 20 हो जाते हैं और कभी 22, 23 तक भी जा सकते हैं. So general knowledge, their maximum marks. Number of questions 20 questions. Each question is of 3 marks and total 60 marks. So in the case of general knowledge, your part GK part is of 60 marks. Then next is your syllabus, that is total part of GK where different subjects are involved. First one, history, and history again divided into 3 types: ancient, medieval and modern history. Second very important part is your static GK and miscellaneous. Third part again which is very important for FCAT particularly, that is sports. Sports related questions आएंगे. Then geography, where you will find continents, mountains, peaks, ocean, etc. and other physiographic structure related questions. Then of course environment related issues, global warming, pollution, etc. Then some question or from general polity, and lastly current affairs. So this is the whole syllabus of GK, or we can say general awareness in the case of FCAT examination. Let's see next slide where distribution of questions, जो कि एक एग्जामिनेशन का ट्रेंड देखा गया था. पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स को हमने जब देखा था तो इस तरह से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट थे. स्टैटिक जीके और मिसलेनियस जो है वो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है. यहाँ 5 क्वेश्चन और कई बार 5 to 6 क्वेश्चन 6 भी आ जाते हैं. देन हिस्ट्री पोर्शन 4 क्वेश्चंस रेगुलरली फ्रॉम इधर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों मिक्स हैं उसमें, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस. स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस ये एसेंशियली आ ही रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस जो आते हैं वह आते हैं 3 टोटल, 3 और 4 ये क्वेश्चंस स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. स्पोर्ट्स में क्या आ सकता है? स्पोर्ट्स में कई बार ट्रॉफीज के नेम, या फिर स्पेशली जो पूछा जाता है, जो पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स में हम देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का जब ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स है वह अभी हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें और ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स. सेम in the case of current affairs, 3 questions. Then geography also contains major portion of this examination. So this is the whole story of distribution of questions in the case of FCAT exams. Let's see the next. Here is the weightage portion. कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं? तो we can see here static GK or miscellaneous part is maximum, that is 32%. Then second one is geography which covered 23%, and then sports, history and current affairs equally 10%. So this is the pie chart of this weightage: static GK, geography, current affairs as well sports and history. Then move to the type of questions, or especially the very important, that is the trend of cutoff marks in the case of FCAT examination from some previous years.
जब हम इस ट्रेंड को देखते हैं, अगर दोनों ही शिफ्ट में जो एग्जाम होता है 2019 और 2020 में, 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वहां कट ऑफ पेपर टफ था, कट ऑफ 135 तक गया था आउट ऑफ 300। एफकेट सेकंड शिफ्ट 2019 में कट ऑफ 142, दैट मींस 7 मार्क्स या 7 मार्क्स ये अप रहा। कट ऑफ कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है, आप देख सकते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एफकेट 2020 फर्स्ट शिफ्ट 153, एफकेट 2020 सेकंड शिफ्ट 155 एंड एफकेट 2021 फर्स्ट शिफ्ट 160। नेचुरल है, जो कट ऑफ है वह डिपेंड करती है नेचर ऑफ पेपर्स, और यहां पर ओनली जीके का पोर्शन नहीं आएगा, उसमें जीके, रीजनिंग, इंग्लिश सभी इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो टोटल कट ऑफ है ये, लेकिन फिर भी हमें ट्रेंड को देखकर हार्ड वर्क करना ही होगा, क्योंकि कट ऑफ कंटिन्यूअली इंक्रीज हो रही है। कट ऑफ वह लास्ट पॉइंट होता है जिसपे सिलेक्शन लास्ट होता है। सो दिस इज ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मार्क्स। अब यहां अप्रोच क्या रखनी है कि हमें क्या करना है कि हम इस कट ऑफ से काफी अबव चले जाएं, तो कट ऑफ का जो प्रॉब्लम है वह रहेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जब क्वेश्चन पेपर ये ऑनलाइन है, तो इंग्लिश और जीके उनको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो बहुत फास्ट हो जाएंगे, और इनको साइकिल्स में अटेंड करना है, राउंड में अटेंड करना है। जीके में पहले राउंड में आप कितने क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, और इंग्लिश में उनको फिल कर लेंगे, देन मूव टू द रीजनिंग एंड मैथ्स पार्ट, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन होता है। और यहां आपको जब कॉन्फिडेंस होता है, स्टार्ट करते हैं, तो जीके के क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, और जो आ रहे होते हैं वो फर्स्ट राउंड में आप क्लियर कर लीजिए। सो दैट इज द मेन अप्रोच और स्ट्रैटेजी टू क्रैक एफकेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हेन विमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स। अब ये स्टैटिक जीके है, मिसलेनियस है। तो हमें पता है 1900 से जो विमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में, और उसके बाद सेकेंड ओलंपिक से ही विमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। विमेन हु हैज वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इज। अब ऐसा क्वेश्चन, ये जो पर्सनैलिटी है उसके लिए क्वेश्चन है। अगेन स्टैटिक जीके और मिसलेनियस जो पोर्शन है जीके का, उसमें से पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज लारिसा लैटिनिना। लारिसा लैटिनिना एक जिम्नास्ट थी, रशियन जिम्नास्ट, जिन्होंने इंडिविजुअल जो इवेंट्स थे जिम्नास्ट के, उसमें बहुत सारे मेडल जीते थे। आई थिंक इट इज टोटल 10 मेडल्स, एंड फॉर टीम इवेंट में 4 और मेडल्स इन्होंने दिलवाए थे फ्रॉम 1956। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के जो मिसलेनियस पोर्शन है, वह पोर्शन इसमें निश्चित तौर पर 100% पूछा जाता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल। अब यहां कंफ्यूजन आएगा, प्रकाश पादुकोण, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। पी कश्यप भी इवन जो बैडमिंटन प्लेयर है, बट जो फर्स्ट मेडल ओलंपिक में जीती है वह ब्रॉन्ज मेडल होता है, और वह साइना नेहवाल वन करती है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें क्रैक करना होगा। द वर्ड चुकर यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। अब ये मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स 100% पूछी जाती है, और बड़े अजीबोगरीब टर्म्स आती है कभी कभी। तो चुकर और चक्कर जो है यह यूज होता है पोलो में। किसमें यूज होता है? पोलो में। तो ये तो स्टैटिक जीके का पोर्शन में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताए। अब बाकी क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न मिक्स आ सकता है, और पॉइंटर्स आते हैं जो इजी होते हैं। द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज। हरियंक डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर कौन था? बिंबिसार। सो द करेक्ट आंसर बिंबिसार। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है। तो वन लाइनर है, पॉइंटर्स है और फैक्ट्स है, ये फैक्चुअल है। तो इजीली इनको जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये बिल्कुल याद हो जाते हैं।
तो हिस्ट्री में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यह मिडिवल से पूछा गया, हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर? सो नेचुरली द आंसर इज औरंगजेब। शिवाजी के टाइम जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? औरंगजेब थे। तो ये मिडिवल हो गया, ये एंशिएंट हो गया। लेट्स सी सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री और समटाइम्स ज्योग्राफी आल्सो। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट is equal on which day? That day is known as summer solstice or winter solstice or equinox or all of these? The answer is equinox. Equal कह रहा है तो यहां पर हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को बड़ा आसान से एक हमने ऑप्शंस देख लिया। The smallest mountain peak in the world is located in which continent or which part of the world? The correct answer is Australia. Mount Kosciuszko जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का जो माउंटेन पीक है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट है। जो अंटार्कटिका, अफ्रीका और अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वह स्मॉलेस्ट में नहीं आते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सेम विथ सम करंट और समटाइम्स मॉडर्न हिस्ट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन ऑफ 1927, the famous year when it boycotted the Simon Commission? तो जो कांग्रेस सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो सेशन था, उसमें उस समय कौन थे हेड या किसने प्रिसाइड किया था इसको? M.A. अंसारी। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो रिलेटेड विद द कांग्रेस सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द बुक। ये बुक से, बुक या ऑथर के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं और दूसरी बुक्स रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री की मैगजीन्स या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की कोई बुक्स भी पूछी जा सकती है। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय, सो हियर इज द आंसर इज नेल्सन मंडेला। द करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द फर्स्ट नॉन व्हाइट और ब्लैक हेड ऑफ द साउथ अफ्रीका president, of course, who wrote this famous book, Long Walk to Freedom. So this is all about types of questions in the case of FCAT. तो यहां पर हमें स्ट्रेटेजी यही रखना है, टाइम लिमिट, और स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ जीके फर्स्ट। तो जो क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए हैं, रिवाइज किया आपने, यू विल इजीली क्रैक these questions very fast. यहां राउंड कर लीजिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो रहे हैं उन्हें फास्टली आप फिल कर लीजिए। देन स्टार्ट द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में यदि क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो एलिमिनेशन प्रोसेस आप ले सकते हैं, जहां 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी बचे हुए रेस्ट 2 में से आप आंसर इजीली क्रैक कर सकते हैं। देन स्टार्ट द इंग्लिश एंड लास्ट इन रीजनिंग एंड मैथ्स। सो ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन, और यह सब आप बहुत इजीली कर पाएंगे शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप के साथ। स्पेशली मिसलेनियस और स्टैटिक जीके में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पोर्शन हम आपको उसको वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, वह पोर्शन मिसलेनियस का इजीली अवेलेबल है आपके पास। कई बड़े बड़े जो टाइकून हैं, यूट्यूबर हैं, वो तो अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन शौर्य भारत ऐप में ये पहले से ही उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। आप सोते सोते आराम से इस सर्दी के मौसम का मजा लेते हुए अपनी जो ब्लैंकेट है उसमें इसको इजीली क्रैम कर सकते हैं उस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो शौर्य भारत ऐप में अवेलेबल है। सो ऑल ऑफ द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।